वो सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो वो नीज़ पे हाथ रख के फिर चढ़ती थी। पहले तो मुश्किलों में थे, पता नहीं था कुछ भी, अब जानकारी नहीं थी। तो हमें तब पता ही नहीं था कि है क्या ही। तो फिर जब धीरे धीरे हमें पता चला कि ये कुछ ऐसी वाली बीमारी है जिसका क्योर नहीं है। I took Kathak classes. I was that perfect in my actions. Physically, I was that fit. But this problem is progressive. So day by day, it will take you. I was in class 11. I had to quit dancing. Doctor says that it's a progressive disorder. Acceptance is not that easy. Either you live it or you die. You are a warrior. You can become a role model. Fight with muscular dystrophy. Hi, I am Sanjana. मेरे परिवार में 2 जनों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, मेरे बड़े ब्रदर्स को। जब मुझे शुरू हुई तो मुझे खुद को आभास हो गया कि ये प्रॉब्लम मुझे भी है। How can this occur to 3 persons in a family? So that was initial shock was very big. Muscular dystrophy is a progressive genetic disorder which can come to anyone at any age, and it can come to more than one siblings in a family. डॉक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं थी। मेडिकल बुक्स में बहुत ही कम लिखा गया था। स्कूल में सारे बच्चे मेरे को बहुत चिढ़ाते थे कि ये बच्चा चल नहीं सकता है, गिर जाता है, ऐसा ऐसा बहुत सुना। डॉक्टर बताते हैं कि मेरी उम्र 30-18 साल रहेगी, इससे ऊपर इनकी एज नहीं जाएगी। Every day you have to cope up with a new situation. You walk on the toes. You have to make changes in the toilet seats. You have to make changes in your architectural setup at home. Coming out of the house was not a small thing for a muscular dystrophy patient. Because of hilly terrain, the schools are not accessible. Moving around on the road, in the marketplace, no shops are accessible. Actually, we were not knowing about the role of therapy in the life of a muscular dystrophy patient. We cannot stop the problem, we cannot stop the disease, but we can slow it down. Every day your muscle is getting weakened and it gets shortened also. So if you give proper stretch and all your joints are given complete range of motion, they remain intact for a longer time. Having regular therapy in Solan town was not that easy. Saw my brothers struggling with it. I saw that you cannot stop yourself just because of the problem. Sanjana was adamant that we should do something for the fellow sufferers. We used to organize camps at different places, and we would make people affected with muscular dystrophies, make them aware about the new findings, fun activities, games, and we would educate them about physiotherapy. Picnic with a purpose, we gave it a name. We organized camps all across the country. So people thought that something for muscular dystrophy is happening in Solan, so we should go to Solan. So we thought there should be a center which would practically tell everyone physiotherapy actually helps. Having, good atmosphere at home
it helps. So that time the center was conceived. There was a vision in our mind to create something in the shape of IMDRC. This was in our dreams. This is the only center which is providing everything under one roof. ये डिज़ाइन ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वॉरियर के लिए किया गया है। आपको हर फ्लोर में रैंप्स बने हुए हैं, लिफ्ट की सुविधा है। हर जगह हमने रेलिंग्स लगाए हैं, वॉशरूम में हो गया या रैंप पे हो गया। फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, योग प्राणायाम या पर्टिकुलर डाइट लेके हम इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। लाइक कौन से पेशेंट को कौन सी टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चे हमारे इनिशियल मतलब रिसेंटली कोई व्हील चेयर पे आए हैं, अगर वो बच्चा हाइड्रोथेरेपी में बैलेंस करना लग जाए तो वो अपने आप को बाहर भी बैलेंस करता है। जो वाटर के साथ जो अपन एक्सरसाइज करते हैं उसमें अपन को रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है एंड उसमें पेन भी नहीं होता है। मेरे को यहाँ पर आए इतने टाइम हो गया लेकिन मेरे को आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। यहाँ आने के बाद मैं सीधा चढ़ना चालू कर दिया है। मेरा नीचे से बैठ के उठना बहुत ईजी हो गया है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, मोबिलिटी ट्रेनिंग्स होती हैं। कैसे वॉक करना है, स्टेयर क्लाइंबिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। I take physiotherapy every day. After every fracture, I started walking due to hydrotherapy. And of course, breathing pranayama. It's very effective. 1, 2, 3. So we kind of educate their parents. So they learn from here, they go home, and they do it on the regular basis. And they keep coming to the center again and again. मेरे पापा को पता लगा कि ऐसे ऐसे कई जगह कैंप हो रहे हैं जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं स्पेशल एबल्ड। फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा कि आई एम नॉट अलोन। Yogesh and Kalpana was very small when we got to know about them. Her mother, one day she came, she told us that it's becoming difficult for her to send her children to the school. Their house was downhill. So we suggested them that they should sell their house off. They should build up a house on the roadhead. It was a kind of shock for them. Then they realized that yes, this is the only solution. जब मैं IMD के साथ जुड़ा तो लाइफ के टर्निंग पॉइंट समझ लो आप। उनका मतलब जो मोटिवेशन देना या एक तरह से मोरल सपोर्ट देना, वो एक तरह से चिंगारी का काम किया मेरी लाइफ में। धन्यवाद तो इनको हम जितना बोल के भी करें तो वो भी कम है। गांव के डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, बोला कमजोरी से है। पहले तो मैंने सोचा अब तो कुछ होगा नहीं, घर में बैठे रहता, हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। लेकिन जब से हम यहाँ आने लगे, विपुल सर को देखे, सन्ना मैम को देखे, तो मैं दूसरा बार जीने का सहारा खोजी कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं हम अपने बच्चे के लिए। ऋषभ तब 6.5 साल का था। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि ये दोबारा कभी नहीं चलेगा। सारी जगह पर निराशा ही मिली थी। यहाँ आने के बाद वो कैलिपर सहारे चल लेता है। थोड़ा इतनी खुश हूँ, मेरा बेटा आगे कुछ बन पाएगा। हम 2 भाई 1 बहन है, तो पता लगा था कि हम तीनों को ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है।
तो मैं फिर यहाँ पर आया। फिजियो यहाँ की सबसे बेस्ट है, जो मैं 15 मिनट में चलता था वो मैं 5 मिनट में कवर कर लेता था। मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा मेरा दूसरा घर है। Now people from all over the country, they are coming to our center. They feel that this kind of atmosphere has made their life much better, and they said it is our second home. We charge very little from the patients, very little from the families. Everything is available. There's no place in the center where a wheelchair cannot go. People, they started accepting us as it is, and that was, I would say, bridging the gap between able and disabled. I give all credit to Sanjana. She is 24/7 into giving her time and energy for this cause. People, they say she's the mother of the children. इंडिया को सामर्थ्य बनाने के लिए we should be able to take the challenges. There is nothing in muscular dystrophy which can stop you from being a productive citizen. ये एक ऐसा सर्विस है जो बस पे है। That's why we call it a mobile therapy bus. पहले मैं चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी। सब चीज़ के लिए अपने घर वालों के सपोर्ट से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे कोई क्लिनिक भी नहीं था यहाँ पे हमारे आसपास। हम हॉस्पिटल जाते थे, अलग अलग हॉस्पिटलों में चेकअप करवाते थे। लगता ही नहीं है कि ये ठीक हो जाएगी, ऐसा बोलते थे डॉक्टर। हेल्थ एकदम बेसिक नीड। अगर हेल्थ ठीक नहीं है और हेल्थ के लिए आप इधर उधर घूम रहे हैं, फिर कहाँ से आप शिक्षा लोगे, कहाँ से आप रोजगार ढूंढोगे। सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बट फैमिली भी इक्वली सफ़र करती है। शुरू से ये रहा है कि जो बेसिक नीड्स हैं उनको जो प्रताड़ित लोग हैं उन तक कैसे पहुँचाया जाए। उसके पैरों में जान नहीं थी और नहीं चल पाती थी, नहीं उठ पाती थी। उठती थी तो गिर जाती थी। वो हमें कोई पता ना था। हमारी बेटी विकलांगता है। जब छोटी थी साल भर की, उसके बाद बीमार होगी तो डॉक्टरों से ही मिस्टेक होगी, नस वस डैमेज होगी, उसमें सुई लग गई इनके। इलाज से चल जाए, दवाई गोली से कुछ नहीं है। डॉक्टरों को भी दिखाया था, उन्होंने मना कर दिया, न जी ये नहीं कर सकती, नहीं चल पाती। फिर देसी इलाज भी कराया, मालिश वालिश खूब करा, कोई फायदा नहीं हुआ। कभी कभार हम गोदी में ले जावे बैठे, कभी हाथ में पकड़ के ले जावे, इनको चला नहीं जाता था। मोबिलिटी की वजह से वो मतलब अपने आप को कमजोरी समझती थी, जैसे और बच्चे करते थे उसकी वजह से नहीं कर पाती थी वो भी। तो उसकी हर तरह से ही मदद करते थे। उसको तो सारे की जरूरत रहती थी, स्कूल ले जाना, छोड़ना, पकड़ कर लेकर जाना, घर में भी जैसे चढ़ाना। मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो ये मेरे को शुरू हुआ निकलना। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हुई मेरी, तो ये हाथ पैर भी मेरे कम काम करते हैं हर चीज़ के लिए। इसी वजह से मैंने स्कूल छोड़ा। ये जो प्रोजेक्ट है इसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन इसीलिए हुआ था क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके पास कोई एक्सेस नहीं है सर्विसेज की। तो ये एक ऐसा सर्विस है जो बस पे है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ मोबाइल थेरेपी बस। इसमें पूरे थेरेपिस्ट जो प्रॉपर रिकॉग्नाइज प्रॉपर एजुकेटेड थेरेपिस्ट जाते हैं, उनके लोकेशन पे जाते हैं। So the entire thought of mobile therapy bus was designed in a way where we wanted to get into early identification and early intervention. So our bus, it's equipped with a speech therapist who provides speech therapy and audiological services in a soundproof fabricated room.
फोटो से बंद करो, वेरी गुड। We have a special educator on board. We have a clinical psychologist on board, and we have an OT and PT also, who provide these therapeutic services to the children with disabilities and persons with disabilities. जो लोग ऊपर सीढ़ी चढ़ करके नहीं आ सकते या व्हीलचेयर यूज करते हैं, ट्राईसाइकिल यूज करते हैं तो उनके लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट भी है, जिसमें वो ऊपर चढ़ करके हमारी बस तक आ सकते हैं और थेरेपीज ले सकते हैं। वी मेक श्योर कि हमारे जो थेरेपी देने के मटेरियल मॉड्यूल जो भी हो, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, ये सारे इनकॉर्पोरेटेड हो। होलिस्टिकली वे से वी ट्राई टू प्रोवाइड सर्विसेज। वी कॉल इट स्टैंड पॉइंट, जहाँ पे हमारी बस जाती है, तो उस लोकेशन पे हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है कहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी की नंबर्स थोड़ी सिग्निफिकेंट है, जहाँ पे हम इंटरवेंशन कर सकते। ये जो द हंस फाउंडेशन है वो सिर्फ मोबाइल थेरेपी बस को हम कम्युनिटी में ही नहीं लेकर के जाते हैं, हम लोगों के घरों में भी जाते हैं, हम डोर टू डोर भी जाते हैं। तो हम जाते हैं कम्युनिटीज में, सर्वे करते हैं, वहाँ जा करके लोगों से पूछताछ करते हैं। Then we initiate our baseline survey. What are the ideas, what are their knowledge, and what are their understanding about their rights of disability, general about therapeutic services. सदरपुर में पहले घर घर जाना पड़ा, लोग इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं और फिर वो उनको बस तक लाने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं कि भाई आप आइए हमारे बस में सर्विस लीजिए। पूजा के घर वालों को थेरेपी के विषय में कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने उनको समझाया कि डॉक्टर्स आते हैं तो वो आपको थेरेपी बताएंगे, जिसकी वजह से इसको चलने में, फिरने में या कहीं बाहर जाने में, जो ये घर में छुपी छुपी से रहती है, कहीं जाती नहीं है, तो इस सब में इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ में पहले मेरे मोबाइल थेरेपी पे मम्मी भी जाती थी, पापा भी जाते थे कभी कभार, और भाई भी जाता था। तो वहाँ पे थेरेपी होती थी मेरी, भाइयों को, मम्मी को और पापा को भी समझाया जाता था। पूजा जो है उनको फिजिकल डिसेबिलिटी है और उनकी जो कंडीशन है उसको स्कोलिसिस कहते हैं, यानी जो उनकी स्पाइनल डिफॉर्मिटी है और साथ ही उनके दोनों लोअर लिम्स में वीकनेस है। पूजा जब पहली बार हमारे पास आई थी तो हम लोग उनके बारे में जानना चाह रहे थे, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेकिन वो हमको जवाब नहीं दे रही थी। उनके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था, वो अपनी बात नहीं कह पा रही थी। मोबिलिटी अफेक्टेड होने की वजह से वो घर पर ही बाउंड हो गई थी। पूजा ने हमारी मोबाइल थेरेपी बस में फिजियोथेरेपी ली है, क्योंकि जैसे कि उसको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, स्टिफनेस थी जो उसके पैरों में, तो उसने फिजियोथेरेपी के सेशंस लिए हैं रेगुलरली। And I'm very proud to say that in a span of 2 years and with all the therapy that she needed at the bus, we've been able to make sure that Pooja is living an independent life. जब धीरे धीरे उनके लाइक मोबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुए, देन उनके फैमिली मेम्बर सपोर्ट करना उन्हें स्टार्ट किए। अभी शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो सोशली बातचीत कर सकती हैं। अभी यू कैन सी स्माइल ऑन हर फेस। मोबाइल थेरेपी बस से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि मैं अपनी ट्राईसाइकिल से कहीं भी आ जा सकती हूँ। मैं अब अपने आप चल भी लेती हूँ, मैं खुद से जा सकती हूँ और घर वालों पे डिपेंड नहीं हूँ। उनकी तरफ से दैट प्योर कंसिस्टेंसी वाज देयर एंड मोटिवेशन कभी भी डिमीन नहीं हुआ। शी वाज द वन जो बस अगर लेट भी हो गई कॉल करके पूछना आज बस आएगी या नहीं आएगी। गोविंद भी हमारी सदरपुर कम्युनिटी का एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, जिसको माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है,
जब वो पहले हमारे पास आया था तो उसकी सोशल स्किल्स काफ़ी कम थे और वो बातचीत नहीं करता था, सिर्फ अपने में ही ज़्यादा खोया रहता था। तो उस टाइम ना आसपास ये सब था, कोई सुविधा नहीं था, ना मुझे कुछ पता था। फिर मैं बचपन से इनको इलाज कराते गए हैं। अब बहुत लोगों ने बोल दिया जो थेरेपी से कुछ नहीं होगा, अब जो दिक्कत है दिक्कत है। यहाँ हंस फाउंडेशन का बस आते हैं, उन्होंने जैसे जैसे बताया, एक्सरसाइज बताया, जैसे मुंह थोड़ा सा बोलता भी है तो साफ नहीं बोलता है, तो उसमें फिजियोथेरेपी बताए थे इनको। अब धीरे धीरे बहुत सुधार हो गया वो कराने से। ज़्यादा अच्छे किस टाइप के गेम्स लगते हैं? बजर वाला। अब कितनी देर फोन चलाते हो? मेरा नाम गोविंद पांचा है। मैं थेरेपी में भी जाता हूँ और एक्सरसाइज भी कराता हूँ। मैम मेरी काउंसलिंग करती है और टेस्ट भी लेती है। अब मैं अपनी मम्मी की मदद करता हूँ घर में। बात जब करता है तो आई कांटेक्ट भी करता है और देख करके बात को अच्छे से सुन करके समझ करके तब उसको जवाब देता है। फंक्शनल स्किल्स में, सोशल स्किल्स में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। जिंदगी में ये कुछ कर पाएगा, ये विश्वास उन्हीं लोगों ने डलवाए। इसी तरह हर माता पिता अपने बच्चे को साथ टाइम दे, करे तो सबका बच्चा, मुझे लग रहा है उम्मीद से, जो सबका बच्चा ठीक हो जाएगा। हमारे हर डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट का एक लॉन्ग टर्म विज़न ये है कि जब हम उस जगह से वापस आए तो वो कम्युनिटी स्ट्रेंथन होनी चाहिए खुद से सेल्फ रीच आउट करने के लिए। हंस फाउंडेशन ने मुझे समर्थ बनाया है। जब से मोबाइल थेरेपी बस मेरे घर के पास आने लगी है तो मुझे अपने आप में दिखता है कि मैं आगे बढ़ने लगूं। मैं बाकी बच्चों को भी यही समझाऊंगी कि वो आगे बढ़ें और समर्थ बने। Change makers like Sanjana Goyal and the Hans Foundation are transforming lives through accessible healthcare, enabling access and dignity for persons with disabilities. Their vision aligns with Samarth by Hyundai's spirit of empowering every ability, dismantling barriers and nurturing an inclusive world, where each step moves us closer to equality and infinite possibilities.